हाय हेलो नमस्ते। मेरा नाम है द्विपन रॉय चौधरी और आज के इस लाइव सेशन में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एसबीआई पीओ का मॉक टेस्ट नंबर 2 जो कि अवेलेबल है टेस्टबुक प्लेटफॉर्म पर। और इस टेस्ट का लिंक पहले से ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप चाहे तो वहाँ से अटेंड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। राइट, Africa's native plants are is native to Asia, are to support mechanized agriculture हो सकता है, are to support okay, are very difficult to domesticate it. So A के साथ D हो सकता है. Let's see. The earliest examples of cultivated plants discovered in Africa. To support mechanized agriculture. Okay, Africa communities were not advanced enough to support. तो C और E मुझे एक पेयर लग रहा है, लेकिन यहाँ पर B और E, C और E, ऑलराइट, E और D भी मुझे लग रहा था. Africa's native plants are very difficult to. ओके ओके, ये तो ग्रामर का गलती है इधर. टू बी डोमेस्टिकेटेड होगा, सो ए cancels out and then CE are not advanced enough to support. Alright, ज़्यादा टाइम लग गया फिर भी. There is evidence of agriculture in the region. No, livestock also came prior to this. Alright, let's see. Drying up of what is now the Sahara Desert resulted in glaciation. So CE and BF, is there any option? No. There is evidence of agriculture in the region. Okay, prior to, so AF and BD, so came from outside Africa, right? To say that saving the earth is the need of the hour would be an dash, would be an understatement. What will this human to be doing? Jittery. Have caused dash damage to the earth. Yes. Immense damage to the earth. It is degraded beyond repair. Almost all the natural resources are now polluted due to these activities. When all these resources will be under threat, naturally lives of all living organisms will be under threat, under subdue, under peril. This is why we need to save the earth at all costs. All other issues are dash, and saving the earth are underestimate, are okay, are secondary. Okay, she performed so enthusiastically as the judges overlooked her inexperience. It's about time you had paid a visit. It's about time you paid visit. The most exciting event in the Sydney Olympics for most British viewers were the most exciting event was the hoga, so was the for most viewers was. Okay, interchange करना है. Chat president, someone has characterized a state of, has declared, so AE.
whereas captive mining coal is characterized by, all right, although many of its main figures are liberal in economic term, okay, the party votes that Fernandez, albeit, okay, to the court are in favor of protectionist policy. Okay. Increasing in GDP should be the nation's breach. No. Nation's prime strategic okay, so AF. CH, okay. Notwithstanding the side effects, this same growth might have on the present and future quality. Okay, along with the need for the data protection law, all privacy breach cases should be authorized by the court, with the agency responsible being held to account. So CH नहीं होगा, then A and F only. Concerns have been paved regarding has been raised. Paved and so AF DH, okay, regarding the cryptocurrency market. So okay, CV रमन, पैसेज तो ज़्यादा लंबा नहीं है लेकिन बाद में करेंगे. The team was working against the clock. Okay. While the pandemic helped highlight the dash of water hygiene in public, it is also dash to ensure continued behavior change towards so important to ensure. India is consistently dash on the ease of doing business, improving. Okay, okay, in various areas. ठीक है. We then dash to improve the funding of the funding for the country's infrastructure sector. The finance minister dashed the setting up. Minister announced the setting up with an aim to improve. The economic survey focused on wealth creation, targets, pro-business policies, and damaging no and positive है दोनों ही words. Cause the police do not know the cause of the accident. The cause, okay. We are all committed to the cause of racial, okay. He slipped out during a course of conversation होगा. So A and B. Movement, the house is being built at the movement. I don't think it sounds correct. The sudden movement of the ship knocked them both off balance. हो सकता है. She is a forerunner in the movement. So B and C. So तीन तो है भी नहीं है एक साथ. Like they're like playing tennis. Okay, the president has proposed a life. Okay, they look exactly. You look exactly like a father. So A and C. All right. She did in fact look like an angel. Who? मुझे नहीं पता, तो अभी इससे नहीं शुरू कर सकते. They decided to name her Angel. No, इससे भी शुरू नहीं कर सकते. Okay, Jenna and David were overwhelmed with happiness at the sight of the little baby girl.
होंगे ही, बिल्कुल होंगे। सो बाकी देख लेते थे। लैविश्ड हर, शी वाज द एप्पल ऑफ एवरीवन्स आईज, स्पेशली हर पेरेंट्स। hmm they lavished her with love since had always wanted a child for many years. Oh my goodness. इफ आखिरी नहीं आएगा मेरे ख्याल से। दे लेविश्ड हर, सो कौन होगा? So is that about- तो डी के बाद ई आएगा, ये एक प्लॉट हुआ। दे डिसाइडेड, कौन डिसाइडेड करेगा? इसके पहले ही मतलब उनके पेरेंट्स का नाम आएगा ना, सो आइदर सी के बाद बी। सो सी बी ए, ये क्या प्यार हो रहा है? जेना एंड डेविड वॉरंट होते थे उनकी बच्ची को देख के, उन्होंने उसका नाम डेविड रख, और डेविड, उन्होंने उनका नाम एंजल रखा। शी इन फैक्ट लुक लाइक द एंजल, शी वॉज द एप्पल ऑफ एवरीवन्स आईज। The only problem was this. Let's see. First is C for me. Second is B for me. Third is A. Fourth is D. Fifth is E. Okay. Okay, पहले पैसेज को कर लेते हैं। Okay. Okay. Serial or the motion.
ओके, अब पूछा है कौन से वाले में एरर है. ओके, द एक्सपीरियंस डिटेक्टिव renowned for his meticulous attention to detail. Okay, the detective carefully examined the crime scene, searching for any clue that might lead to a breakthrough. Okay, सही लग रहा है. Between the two competing proposals, the committee ultimately selected the one that offered the most comprehensive and cost-effective solution for the community. Okay, if the team would have practices more, if the team had practices more, they would have had better. This one is incorrect. The recent advancement in genetics hold immense promise. Okay, the principal announced that every student, regardless of their or of one's standing. I think this is incorrect. मुझे और पढ़ना भी नहीं है क्योंकि कभी कभी यूज कर ही लेते हैं, यही दिक्कत है ना. ओके, बाकी एक बार देख लेते हैं. The fragile ecosystem of the coral reef is currently under severe threat. Ocean rising, various forms, marine. Okay, having patiently waited for hours, the eager fans finally caught a glimpse of their favorite celebrity as she exited the exclusive restaurant. The complex mathematical equation requiring advanced calculus to solve challenged even the most brilliant minds. ठीक है, ये पर भी same. The company implemented a strict new policy which restricts employees from using personal mobile devices during official working hours. The breathtaking view from the mountaintop, encompassing vast forest and shimmering lakes, made the arduous climb entirely worthwhile for the trekkers. The intricate machinery, designed with precision engineering, operates silently and efficiently, significantly reducing factories' energy consumption. Okay, the recent increase in global temperature has led to accelerated melting of glaciers and rising sea levels, posing a serious threat. Okay, due to unforeseen circumstances, technically much anticipated online seminar, the much has been indefinitely postponed until a later date. The journalist whose extensive had undercover numbers received a prestigious award for her courage and dedication. Safety protocol developed in collaboration with are designed to minimize risks and ensure the philanthropic efforts of the foundation have made a significant positive impact on the lives of thousands of the lives of thousands of lives of thousands of disadvantaged children worldwide. मुझे तो सारे ही करेक्ट लग रहे हैं यहाँ पर भी. Many a student dreams of pursuing higher education abroad, hoping to gain international experience and broaden his होगा ना. आई थिंक सो, बाकी बाद में देखेंगे. ये पहला वाला ब्लैंक. To say that saving the world is a need of the hour would be an understatement. बताना कि कम होगा, कुछ करना पड़ेगा, ऐसे कुछ बोल रहे शायद. Although many of its main figures
So AG are aspirational the share of प्रोटेक्शनिस्ट सेल्स में, अब तो छोड़ देता हूँ इसको. The number of shirts sold by A is 1/4 of the total pants sold by B. The ratio of the total shirts and pants sold by D. So total कितने शॉप है? A B C D. सही है. A B C D. एक है शर्ट, एक है पैंट. कितना ही है? शर्ट पैंट बाद में टोटल. ऑलराइट. यहाँ पर कह रहा है कि द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाई ए इज ओके. सो ये अगर 4 होगा ना तो ये 3 होगा, ये कह रहा है. ऑलराइट. द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ शर्ट एंड पैंट्स सोल्ड बाई डी. शर्ट्स एंड पैंट्स सोल्ड बाई डी कितना होगा इसका? 7 और 6. द टोटल नंबर ऑफ पैंट्स सोल्ड बाई ए बी एंड सी. A B and C. Number of pants. Okay. Then shop B sold 10 more shirts. Then number of pants it sold. So यहाँ पर अगर x है ना, यहाँ पर x plus 10 होगा. Okay. All right. So the total number of items sold by shop C is 90. The number of pants sold by C is 25% more than the number of shirts sold by C. Okay, making sense? Making sense. So total कितना हो जाएगा? 5 और 4 9 बटे 5 जिसका वैल्यू 90 है. So 50 and 40. The number of shirts sold. So pants ज़्यादा है. पैंट्स होगा 50 और शर्ट्स है 40. तो अभी इन दोनों का समेशन कितना रह जाएगा फिर? 113. ओके. द नंबर ऑफ पैंट्स सोल्ड बाय सी. ओके ये तो हो गया इतना. द नंबर ऑफ पैंट्स सोल्ड बाय शॉप बी इज 17 मोर देन पैंट्स सोल्ड बाय ए. ये 17 ज्यादा है. ओके 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 ओके. द नंबर ऑफ शर्ट्स sold by D is 5 less than. Okay, so ये x minus 5 होगा. ये बात थोड़ा इक्वेशन बना देता हूँ. ये कह रहा था कि नंबर ऑफ पैंट्स सोल्ड बाई शॉप बी इज 17 मोर देन पैंट्स सोल्ड बाई शॉप ए. ओके. मतलब x और x प्लस 17 का समेशन कितना हो रहा है फिर? 2x प्लस 17 अगर 113 है तो ये हो जाएगा 96. so x हो जाएगा 48. ये अगर हो गया 48 ये आ जाएगा कितना? कितना भाई? बोलो बोलो बोलो. एक सेकेंड. ये है x प्लस 17. ओके 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 ओके. सो 48 और 17 ये तो 3 से जाएगा ही नहीं. कुछ तो गलत किया है. ओके. द नंबर ऑफ पैंट्स सोल्ड बाय B इज 17 मोर. मतलब B का 17 मोर है A से. B का 17 मोर है A से. फिर 96 हो रहा था ना तो 66 मतलब 16 करके हो रहा है. सो तो 3x से निकाल लेता हूँ बस. सो 3x हो जाएगा 48. इस जगह पे आएगा 48. फिर इस जगह पे आ जाएगा कितना? 12 करके. कितना करके हो रहा है? 16 करके.
तो 64। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। ये इससे 17 ज़्यादा है, 17 ज़्यादा है मतलब फिर 65, 65 से भी 10 ज़्यादा 77। और ये क्या हो रहा है, ये इससे, इससे ही है ना, या किससे? द नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड बाय शॉप बी इज 5 लेस देन सोल्ड बाय दिस वन। ऑल राइट, ओके 7 का तो मल्टीपल है नहीं। हाँ, पहले तो मतलब ये 75 आएगा, सो 5 लेस करेंगे तो 70 आ जाएगा, 70 60। सो ये हो जाएगा 130, 70 70 140, 48। और ये कितना हो जाएगा भाई, 72, 72 एंड 40, 1 1 2। ऑल राइट, द नंबर ऑफ the number of shirts sold by shop E is 20 more than number of shirts sold by C. The number of pants sold by E is same as shop B. Total number of items of shop E 1 to 5. The difference between the shirts sold by C and pants sold by होगा तो 7 का मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल बस एक ही है। इसको टिक करके आगे चले जाएंगे, जाएंगे ना, चेक कर लेते हैं। शेयर्ड बाय सी दिस एंड पैंट। ओके, सो नेक्स्ट, for across all 4 shops each shirt is sold for 500, each pant is this, find the difference of total revenue। ये तो होगा नहीं, 100 का मल्टीपल होगा। ओके, तो टोटल मुझे निकालना ही पड़ेगा शायद। ये कितना है, 5 4 9, 9 गुना 500 मतलब 5 आएगा यूनिट डिजिट दोनों में। ओके, यहाँ पर 3 आ रहा है, 3 टाइम्स 4 मीन्स 2, मतलब आखिर में 3 आएगा। सो ये वाला ऑप्शन। द नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड बाई शॉप बी is the average number of pants sold by A and C। A and C का average so 49, so 49 watches। ओके, ओके, अच्छी बात है। which is sold by C is 25, 25 more than sold by this, so 74। total number of items sold by A and B together is found to be n। ओके, मतलब 8 से डिवाइड करने पर कितना रहेगा, 6। 8 से डिवाइड करने पर 6 रहेगा, यानी 4 से करने पर 2 रहेगा, पहली बात तो ये है। सो ये वाला ऑप्शन नहीं है, इस वाला हो सकता है, ये वाला नहीं है। 8 से करने पर भी 2 रहेगा, 800 कट जाता है, 62 नहीं कटता, यहाँ पर 6 रहेगा, हो सकता है यहाँ पर 440 हो जाएगा, 640 हो जाएगा, ये नहीं होगा, 2 2 करके रहेंगे, मुझे 6 वाला चाहिए। सो ये वाला ऑप्शन। ओके, सो करना है क्या, तो ओके, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, नो नो नो, ऐसे तो नहीं हो रहा है। पर गैप कितने का है, 81 का, यहाँ पर गैप है 25 का, 1 का, 149, फिर होगा 149 13, 13 मतलब 169 हो रहा है शायद, 169 हो रहा है, फिर 13 मतलब 17, 17 मतलब 289, नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है, आई डोंट थिंक हो रहा है। 13 का 17 आएगा,
सो वाला ऑप्शन, ये तो माइनस करते करते मतलब एग्जाम खत्म हो जाएगा। ठीक है। 54 टोटल मिला के 6126। ओके, मतलब इसका है 4 टाइम्स जाएगा ना, 4 टाइम्स जाएगा 5 से, सो 20 मीटर पर सेकेंड, इसका है 15 मीटर पर सेकेंड। ओके ओके, तो ज़रूरत नहीं करने की शायद। कितना किलोमीटर है, टी टाइम्स बाद दोनों मिलते हैं, तो टी प्लस 2.5 कितना रहेगा। सो टोटल 126 है ना, सो 639 126। 3 से काटेंगे तो 4 और 2, 3 से काटेंगे तो 2 3 1। ऑल राइट ऑल राइट, ये ऑलमोस्ट 6 टाइम्स से थोड़ा कम है, 6 टाइम्स से थोड़ा कम है, मतलब 4 पॉइंट, रादर 5 पॉइंट समथिंग रहेगा। इसके साथ 2.5 प्लस करूंगा तो 8 ही आना चाहिए। ओके, नहीं करना है इसको। सो दो ब्लू बॉल्स, सो 3C2 by 7C2, 3 black balls, 4C3 by 7C3, 4 times 3 times 2, 7 times 6 times 5. So this one is 4 from 35. This one is 3 times 2 by 7 times 6. So 5 से करेंगे तो 5/35, so 1/35 डिफरेंस। ओके, ए ने इतना स्कोर किया, बी ने इतना परसेंट, डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स ऑफ ए एंड बी इज 40। ओके, तो 400 भी हो सकता है बी का, और 480 भी हो सकता है। आई थिंक 60% का इतना ही वैल्यू होना चाहिए ताकि टोटल एग्जाम 800 में हो जाए। टोटल मार्क्स आर नॉट इन द फ्रैक्शंस, ओके, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए। फिर ए का मार्क्स कितना होगा, 80 का अगर मैं 40 निकाल लूँ तो वो आता है 5%, यानी कि 55% है उसका स्कोर। और अगर ये x+5 है, सो x वुड बी 50। मल्टीप्लाई करना है, यूनिट डिजिट अलग अलग तो नहीं है, दोनों का एक है, लेकिन करेंगे फिर भी। 2 + 6 + 3 + 6 + 9, 8 11 is 15। ओके, 6, ठीक है, अप्रोक्स करना है। हाँ, अप्रोक्स ही करना पड़ेगा। 51 + 17 स्क्वायर, 17 स्क्वायर वुड बी 2। इसको ना 17 + 20 करता हूँ, 19 करता हूँ, 17 + 19 इज 36 टाइम्स 17 - 19 इज 2। ऑलराइट, प्लस 2/3 मतलब 200, ये होगा। इसको इससे माइनस करना पड़ेगा, 105/3 यानी कि 35, एक्स स्क्वायर के साथ इक्वल हो जाएगा 72, 72 और 51। ओके ओके ओके, इसको और इसको काटेंगे तो 16 आ जाएगा। 16 84 284। हम्म 256 289, कुछ गलती की है जरूर। 35, ओके ओके, 61, ओके 71। ऑल राइट ऑल राइट, यहाँ पर कुछ क्या है, क्या गलती। 16 माइनस प्लस 17 - 19 ही मैं पकड़ लेता हूँ। 2 17 19 72 282।
लेकिन इसको स्किप करते हैं अभी। क्लोजेस्ट तो 16 ही आ रहा है, लेकिन फिर भी बहुत दूर है क्लोजेस्ट होते भी। ओके, सो 15% का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 180, 120 का पूछा है। 120 8 टाइम्स होगा, तो आखिर में 4 आएगा, ये सभी में आ रहा है। सो दिस इज 84 6 1440। ओके, बाद में करते हैं इसको। 27 तक है, 28 29 30, इसको करते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज दिस, देन 8 करके है, 8 से नहीं करके अनदर स्क्वायर जो कि है वो x प्लस 10 सेमी स्क्वायर है, 2 टाइम्स द अर्लियर स्क्वायर, सो 16 करके है। सो टोटल एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 256, सो x इज 246। द पेरीमीटर, पेरीमीटर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 1.5, राइट। इस डी आई को करते हैं। ओके, द एवरेज ऑफ मेल्स इन डी एंड ई। ओके, सो ये तो थोड़ा सा मुझे लगता है कैलकुलेटिव होगा। ए बी सी डी ई, सो मेल एंड फीमेल की बस निकाल लेता हूँ मैं। फीमेल इज मोर, ओके। सो टोटल फिर आएगा 60 40, टोटल 160, मतलब 80 एंड व्हाट 76। ओके, सो 100 100 मतलब 50 एंड 30, फिर है 160 मतलब फिर से 80 एंड 60, फिर है 180 मतलब 90 एंड 70। सो डी एंड ई में टोटल क्या है, मेल डी और ई, सो वाई इज 65, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स इन डी एंड ई। ओके, फीमेल्स का ही पूछा है, तो फिर 70, 7 दिस एंड 5 टाइम्स दिस इज 330, सो 20 आएगा आखिर में। एक सेकेंड, ये तो बस 30 आएगा ना आखिर में। 5 टाइम्स दिस इज 330, 02, हाँ ये गलती है ना, ये 85 होगा शायद मेरे ख्याल से, लेकिन 7 टाइम्स तो होगा नहीं फिर। डी और ई में एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स इन डी एंड डी, 85 आ रहा है इधर। ओके ओके, 5 आएगा ना फिर तो, टाइम्स 5 300 325, 5 टाइम्स करेंगे तो 400 425। तो भाई क्या हो रहा है। ओके, सो जेड के साथ 7 टाइम्स किया है, सो 35 और 560, 560, सो 95, 95 मतलब 20, यही वाला होगा। द नंबर ऑफ फीमेल्स इन बी, फीमेल्स इन बी, फीमेल्स इन बी 80, females in C, females in C 50, so 1 3 by 5। P, P मतलब 7 और R मतलब 10, 17। I have no idea क्या चल रहा है। Q R, 2R is definitely this, 7P is definitely this,
9 बॉक्सेस बैलेट पेपर में है, एक से लेकर ऊपर तक पी ओके। सो हो जाएगा मेरे ख्याल से। सो 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो पी के बारे में क्लू बोला है कि पी इज प्लेस्ड हाफ ऑफ इट्स दिस, सो पी इधर हो जाएगा। और कितना बोला गया, द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन टी एंड पी इज द सेम एज द नंबर ऑफ लेटर्स कम्स बिटवीन देम एज पर। सो टी 20 पे आता है, 16 पे आता है, बीच में 3 लेटर्स, सो 1 2 3 पी। ऑलराइट। एज मेनी बॉक्सेस प्लेस्ड अबव जे एंड एच प्लेस्ड बिटवीन जे एंड एच एज लेटर्स कम्स इन देम। सो जे है 10 पे, सो एक बॉक्स है इनके बीच में। ऑलराइट। सो जी और जे एडजेसेंट है एक दूसरे के। ओके, बॉक्स एल इज प्लेस्ड बिलो टी बट नॉट एट द बॉटम मोस्ट पोजिशन। बॉक्स एल, सो एल इधर और एल इधर। नॉट मोर देन वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन नॉट मोर देन वन, एक्स ओ स्लैश एक्स वन बॉक्स ओ, not more than one box which is placed at a o at a prime position। so prime कितने कितने हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। ओके, the number of boxes placed between p and n is 2 less than that below o। so p और n में जितने बॉक्स है वो क्या है, 2 लेस है, ओ के नीचे वाले बॉक्सेस से 2 लेस है। सो ओ यहाँ पे नहीं हो सकता, तो ओ आइदर 2 3 5 और 7, 3 5 एंड 7। ओके ओके, इस इमेज का प्रोजेक्शन ले लेते हैं, 3L, सो ओ इधर या फिर ओ इधर। ऑलराइट 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 ऑलराइट, नेक्स्ट इसका भी ले ही लेते हैं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं। सो एक बार ओ इधर, एक बार ओ इधर और एक बार ओ इधर। ओके, सो ओ हो गया, ओ और एक्स में इधर तो एक का गैप आएगा ही आएगा, लेकिन जे और जी जे अगल बगल रह रहे, एच इधर हो सकता है, जे इधर हो सकता है, और कोई कनेक्टिंग क्लू है ही नहीं लगता है। सेम। ओके ओके, ये एक क्लू मैंने मिस कर दिया था, इज प्लेस्ड एट आइदर थर्ड फिफ्थ और सिक्स। थर्ड में नहीं होगा, एच फिफ्थ और सिक्स में होगा कहीं पर। सो ओके, यहाँ पर तो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि ये वाला कंडीशन नहीं दे पाऊंगा मैं। और यहाँ पर फिफ्थ पे हो गया, सिक्स पे हुआ तो नहीं हो पाऊंगा, फिफ्थ सिक्स पे हुआ तो नहीं होगा, तो यहाँ पर फिफ्थ पे ही होगा एच, और जे फिर यहाँ पर, और जी यहाँ पर। ओके, यहाँ पर थर्ड फिफ्थ सिक्स। ओके ओके ओके, तो ये वाला कंप्लीट कर लेता हूँ पहले, ये अगल बगल नहीं है। ओ के नीचे है 2, सो पी और एन में कोई गैप नहीं रहेगा, ये भी सेटिस्फाई कर गया। और एक जो बंदा है एक्स नीचे आ गया। आई थिंक इट्स मेकिंग सेंस। thus if in some way box G is related to O, G अगर रिलेटेड है O के मतलब 3 ऊपर, T is related to L,
एक ऊपर है, समवेयर P इज रिलेटेड टू, तो ये वाला कंडीशन तो नहीं हो रहा है। ओके, जी है, नहीं ये तो दो ऊपर है ना, तो एल से एक ही ऊपर है, एक का गैप है। एच, भाई क्या करूं, ये तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रहा यहाँ पर, तो सही तो है सब कुछ। का गैप एक दो तीन, P is placed at the position which is half of its place value, as many boxes placed between J and H, as many letters 1 J and H के बीच, box J and G are placed adjacent, box L is placed below box T but not at the bottommost, not more than one box is placed between X and O which is placed at a prime position, the number of boxes between P and L is 2 less than that of below box O। ये तो पता नहीं क्या ही चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग ही मैं करूँगा, पहले वाले को स्किप करते हैं। ओके एक सेकंड, पहले वाला G इज रिलेटेड टू O, प्राइम का ऊपर वाला, इमीडिएट ऊपर जो प्राइम नंबर है उसके ऊपर वाला। P भी है L से कैसे इमीडिएट ऊपर, फिर पूछा है P इज रिलेटेड टू विच बॉक्स, P तो मेरे एकदम ही ऊपर है, लेट्स सी। ओके, P एंड G मेरे में तो नहीं है एडजेसेंट, द सम ऑफ O एंड X नहीं है, ओनली टू बॉक्सेस बिटवीन O एंड T नहीं है, as many boxes are placed between H and G, H and G, ये वाला सही है, ये वाला तो होना ही था सही। Which of the following box is two boxes above G, 1 2 P, if we place each box in alphabetical order from top to bottom, then the position of how many boxes will remain unchanged, top to bottom, G H J 1 L N O P T X2, for me it's 2। Okay, second from the left hand and third from the left hand, सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड जैसे एल है, फिर ए है, और थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एल है। क्या करना है, ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू द प्रीसीडिंग, सो एल से पहले के, और वावल का साथ साथ +1 कर रहे हैं, फॉरवर्ड लेटर। क्या पूछा है, इन बिटवीन देम, 11 2 9 8,
ओके, इसको भी स्किप करते हैं अभी के लिए। गगन तक 9% sitting straight row facing south. Okay, C sees as one of the extreme ends. C one of the extreme ends पर है, सभी नीचे की तरफ देख रहे हैं। Okay, two people sit between A and B, and one of them is an immediate neighbor of C. Okay, A और B के साथ और कोई क्लू है? Four people are sitting between B and F. तो four people. So B फिर अंदर की तरफ रहेगा। One people, two people. Two. A. So B और F के बीच कितने लोग हैं? Four people. So 1 2 3 4 F 4 F 3 3 6 7 7 का प्लॉट हो गया रेडी। ओके, और कौन है? ओके, as any person to the right of I as to the left of him. So इधर एक दो और रहेगा ना, एक दो। So 1 2 3 4 इधर बीच में आना चाहिए था ना। आई को तो बीच में आना चाहिए था। देयर एज एन पर्सन टू द राइट ऑफ आई एज टू द लेफ्ट ऑफ आई। आई को एकदम बीच में आना। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। सो सी इधर और सी इधर, आई। टू पीपल सिट between A and B, and one of them is an immediate neighbor of C. Okay, second from one of the extreme ends. So C यहाँ पर नहीं होगा, C यहाँ पर नहीं होगा। C C B 1 2 3 4 F। सही है। बी और एफ में कितने का? 4% सिट बिटवीन बी एंड एफ। 1 2 3 4। ऑलराइट, D and G sits together, but D does not sit to the left of E. D and E. C and E have more than 3% between them. C and E 1 2 3 हो रहा है। सो ये वाला नहीं होगा शायद। मोर देन 3%। ओके, डी एंड जी सिट टुगेदर। ओके, मतलब फिर भी एक दो तीन चार, हाँ हाँ चार तो है। डी और जी सिट टुगेदर। ओके, ई आखिरी में नहीं बैठेगा, राइट। He does not sit second to the left of B। तो सेकंड टू द राइट हो जाएगा, सेकंड टू द लेफ्ट तो वैसे भी नहीं है। और एक जो बंदा है वो इधर बैठ जाएगा। ई का इमीडिएट नेबर इनमें से कोई भी नहीं है। डी एफ जी आई ई एच एफ एच आई सी। ओके, सिलोक वगैरह पहले कर लेता हूँ। कोई सिलोक दिया ही नहीं है।
गंदा सा नंबर दिया है यहाँ पर। तो किसी एक को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। रेक्टेंगुलर टेबल, 8% कैसे बैठा है, दो साइड्स पे, तीन तीन दो दो, या फिर कैसे, 2% ऑन ईच साइड। ओके, 1 2 1 2 1 2, the person who are facing on the longer side are facing inside। ओके, और वो वाले आउटसाइड। ओके, Ubi is sitting second to the right of Kavi, who is sitting opposite of the one who is the immediate neighbor of Hari, who sits on the smaller side of the table। तो एक और प्रोजेक्शन मुझे लेना ही पड़ेगा। ये वाला अंदर की तरफ देख रहे हैं, बाहर, अंदर, बाहर। ओके, हरी हु इज सिटिंग ऑन द स्मॉलर साइड ऑफ द टेबल। सो हरी यहाँ पे और हरी यहाँ पे। कहा है कि हरी के ऑपोजिट, कहा गया ऑपोजिट, कभी कौन से पोजीशन पे है, ऑपोजिट ऑफ हरीज नहीं पर। भाई फिर तो दो पॉसिबिलिटी आ रहा है फिर से। क्या तो सवाल है। तो इसको ही करते हैं, इधर है। सो कभी को मैंने यहाँ पे दिया, सेकेंड टू द राइट है, 1 2, कौन है, ओविया। अगर इस साइड पे दिया तक देता कभी को, फिर इधर आता कभी, और इसके सेकेंड टू द राइट 1 2, इधर आता ओविया, ऑफ मानो। जब तो यहाँ पर मानो आ जाएगा, आई थिंक आपको कंडीशन में दिया है ना। सो कभी को यहाँ पे दूंगा, नो। सो यही इमीडिएट नेबर, उसके ऑपोजिट पे है कभी। नहीं भाई सही था मेरे ख्याल से फिर तो। ऑपोजिट नेबर, इमीडिएट नेबर, फिर ऑपोजिट पे कभी, कभी के सेकंड टू द राइट पे ओपिया। ओके, मानो को यह नहीं दूंगा, कोई बात नहीं, इमीडिएट नेबर मानो, राइट। आई डोंट थिंक ये होगा कंप्लीट वैसे भी। आई थिंक ये मतलब छोटे वाले साइड पे है ना, तो हरी तो छोटे वाला साइड, ओबिया अगर बड़े वाला साइड हो गया और कभी भी इधर ही आएगा मेरे हिसाब से। तो ओबिया इधर आ सकता है क्या, इधर इमीडिएट ऑपोजिट कभी, सेकंड 1 2 हो सकता है फिर। अनबिलीवेबल क्वेश्चन है। Stupid. क्या अटेम्प्ट करे इसको। मतलब इंग्लिश में मुझे बचा रहा है, लेकिन ये तो अलग ही लेवल का क्वेश्चन था रीजनिंग में।
ओके 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 ओके। ऑलराइट, ट्वाइस द पोजीशन हो रहा था। अच्छा लॉजिक था। इसको 3% लोगों ने किया, बहुत अच्छी बात है। ये वाला आसान था कह रहे हैं, ये तो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया। नहीं अटेम्प्ट किया था तो ये वाला, ये मिला नहीं। ओके, 13 18 इन अ टाउन, ये भी करने वाला था, ये भी शायद करने वाला था। क्वांट्स का कौन सा गलत हुआ है, ये वाला। 7 टाइम्स 75 होता। दोनों का ही 75 आ रहा है। 60 और 90 था। ओके, ये थोड़ा मुझे, ये शायद थोड़ा कैलकुलेशन में गलती हुई था। ओके, सो 12 टाइम्स 75। ओके, सर इंग्लिश की वजह से बिल्कुल ही बच गया, लेकिन मुझे लगता नहीं कि रीजनिंग का सेक्शन भी क्लियर होगा मुझसे। तो ऐसे ही चलता रहा तो मतलब थोड़ा स्पीड भी बढ़ाना पड़ेगा, और शायद प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी अगले कुछ दिन तक मुझे लगता है कि सेक्शनल टेस्ट देना ही बेहतर रहेगा। पहले थोड़ा बेस क्लियर कर लूँ, फिर ये फुल टेस्ट दूंगा।